डियर स्टूडेंट, क्लास 11th इंग्लिश मीडियम में यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर चल रहा था और यूनिट एंड मेजरमेंट के पार्ट 9 में अपन ने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का टॉपिक पढ़ लिया और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स अपन ने कर लिए। और आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 10th अपन पढ़ेंगे, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ डिजिट पढ़ेंगे। तो टॉपिक है अपना सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर द डिजिट दैट express a physical quantity accurately. The digit that express a physical quantity accurately are called significant figure. Again, the digit that express a physical quantity accurately are called significant figure. The common rules for counting the significant figure. First rule, all non-zero digits are counted in significant figure. First rule क्या है? All non-zero digits are counted in significant figure. For example, 3894. There are 1 2 3 4 4 significant figure है। There are 4 significant figure. There are 4 significant figure. Second rule, the zeros occurring between two non-zero digits are significant figure. The zeros occurring between two non-zero digits are significant figure. For example, in 1008 there are 4 significant figure. 1020. Both zeros comes between two non-zero digit are counted in significant figure. ये दोनों जीरो हैं, वो भी क्या आएंगे? significant figure में होंगे. There are 4 significant figure. Third, if number is less than 1, the zeros right to decimal point and left to the first non-zero digit are not counted in significant figure. For example, in 0.00235 here rule क्या था? if number is less than 1, it means number start from decimal point. The zeros comes right to the decimal point and left to first non-zero digit 2 है, आर नोट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर. तो ये दोनों जीरो हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे. तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1 2 3. देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर. देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर. देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर. Okay. Fourth rule, in a number with decimal number, zeros comes after last non-zero digit are counted in significant figure.
For example, in 14.500, in a number with decimal number, zeros comes after last non-zero digit 5. Both zeros are counted in significant figure. It means significant figure कितने हो गए? 1 2 3 4 5. तो there are 5 significant figure. There are 5 significant figure. Fifth rule. In a number without decimal number, zeros comes after last non-zero digit does not counted in significant figure. For example, fifth rule में, for example, in 1000 विदाउट डेसिमल नंबर है. इन विदाउट डेसिमल नंबर zeros comes after last non-zero digit are not counted in significant figure. यहाँ 1 non-zero digit है. आफ्टर 3 zeros comes, ये तीनों जीरो हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे. इट मीन्स देर आर 1 सिग्निफिकेंट फिगर. देर आर 1 significant figure. ओके. और अनदर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, इन 1100 में लास्ट नॉन जीरो डिजिट 1 है और 1 के आफ्टर में 2 जीरो जो आ रहे हैं, ये दोनों जीरो किस में काउंट नहीं होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे. तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 1 एंड 2. तो देर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर. There are 2 significant figure. Sixth rule. The zeros comes after last non-zero digit are considered significant figure if they are obtained by measurement. If they are obtained by measurement. Condition क्या है? If they are obtained by measurement, zeros comes after last non-zero digit are counted in significant figure. For example, 2000 मीटर इन 2000 मीटर मेजरमेंट है. यहां पर 2 के आफ्टर में कितने जीरो आ रहे हैं? 3 जीरो आ रहे हैं. ये तीनों जीरो भी किस में काउंट होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे. इसका मतलब 2000 मीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4. देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर. देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर. रूल नंबर 7. द पावर्स ऑफ 10 are not considered insignificant figure. The powers of 10 are not considered insignificant figure. For example, in 1.6 into 10 raised to minus 19, 10 raised to minus 19 are not counted in significant figure. There are 2 significant figure 1 and 6. There are 2
सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल में इन 6.62 into 10⁻34 there are 10⁻34 are not counted in significant figure. There are three significant figure 1, 2 and 3. So there are three significant figure. Okay, last rule, eighth rule. Eighth, on changing the position of decimal does not affect on significant figure. On changing the position of decimal point does not affect on the number of significant figure. For example, 42.94 there are four significant figure. There are four significant figure. 4.294 also there are four significant figure, but change in the position of decimal point. Four significant figure. Okay, क्वेश्चन है, क्वेश्चन, राइट द सिग्निफिकेंट फिगर फॉर फॉलोइंग. Write the significant figure for following. First, A 5239 Newton, B 1800 kg, C है 45.000 मीटर एंड D है 0.00532 न्यूटन पर मीटर. ओके, न्यूटन पर मीटर. फर्स्ट का सॉल्यूशन, आंसर इन 5239 न्यूटन देर आर फोर सिग्निफिकेंट फिगर. फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर. यहां सारी नॉन जीरो डिजिट है, इसका मतलब कितनी नॉन जीरो डिजिट है, 1 2 3 4. फोर नॉन जीरो डिजिट हैं तो फोर सिग्निफिकेंट फिगर हो गए. देर आर फोर significant figure. A, B 1800 kg, 1800 kg. रोल नंबर 6 हो गया. विदाउट डेसिमल नंबर. जीरोज कम आफ्टर इन. zeros comes after last non-zero digit are counted in significant figure
इफ दे आर ऑब्टेन्ड बाई मेजरमेंट, यहां से मेजरमेंट हो रहा है, इसका मतलब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 4। तो देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, सी 45.00 मीटर। ओके, आफ्टर लास्ट नॉन जीरो डिजिट zeros comes, they are counted in significant figure. Here 5, there are 5 significant figure. There are 5 significant figure. Okay, D 0 in 0.00532 Newton per meter. Rule number 3rd, if number is less than 1, zeros comes after decimal point, या zeros comes right to decimal point and left to first non-zero digit, there are 2 zero are not counted in significant figure. जो जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है या फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में है, वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3। देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपका क्वेश्चन था जो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ डिजिट। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, राउंडिंग ऑफ डिजिट। राउंडिंग ऑफ डिजिट, राउंडिंग ऑफ डिजिट। फर्स्ट रूल, इफ डिजिट आफ्टर द नंबर इज राउंडेड टू बी, द नंबर टू बी राउंडेड ऑफ इज लेस देन 5, then rounded off digit is unchanged. For example, 4.82, 8 को राउंडेड ऑफ करना है, आफ्टर 8 2 comes और 2 is less than 5, therefore 8 is unchanged. तो 4.82 is rounded off, is rounded of 4.8. Second rule, if digit after the number to be rounded off is greater than 5, the rounded number is increased by 1. The rounded number is increased by 1. For example, 11.36, यहां इसको राउंडेड ऑफ करना है 3 को, आफ्टर 3 6 इज कम और 6 इज ग्रेटर देन 5, देयरफॉर 3 इज इंक्रीज्ड बाय 1. तो 11.34 इज राउंडेड ऑफ, इज राउंडेड ऑफ 11.4. रूल नंबर 3rd, इफ डिजिट after the number is to be rounded off is 5, and after 5 any non-zero digit r comes, then before the 5
digit is increased by 1. Okay, for example 6.250 यहां पर क्या है, 2 को राउंडेड ऑफ करना है. आफ्टर 2 5 इज कम्स और एनी नॉन जीरो डिजिट 1 एनी नॉन जीरो डिजिट हो गया 1 to 9. बिफोर 5 2 इज इंक्रीज्ड बाई 1, तो 6.251 इज राउंडेड ऑफ 6.3. यानी जो डिजिट आप राउंडेड ऑफ कर रहे हो उसके आफ्टर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, नहीं 5 आ रहा है, और 5 के आफ्टर में एनी नॉन जीरो डिजिट आ रही है, तो 5 के बिफोर वाला डिजिट है उसको इंक्रीज बाई 1 कर दो. ओके, रूल नंबर 4, इफ डिजिट आफ्टर द नंबर इज टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, after 5 0 is comes, after 5 0 is comes, before 5 the number is even, then rounded digit is unchanged, 8.450. 4 को राउंडेड ऑफ करना है, आफ्टर 4 5 इज कम्स एंड आफ्टर 5 0 इज कम्स. 4 is even number, therefore 4 is not change, and 8.450 is rounded off 8.4. और एग्जाम्पल भी हो सकता है 3.654 इज राउंडेड ऑफ, बोलो क्या आएगा. यहां 6 क्या है, इवन नंबर है. आफ्टर इवन नंबर 5 कम्स और आफ्टर 5 0 कम्स, तो 6 इज अनचेंज. 3.6. लास्ट रूल, इफ डिजिट आफ्टर द नंबर इज टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, number is to be rounded off 5 and 0 comes after 5, then before 5 if even odd number, then odd number is increased by 1. For example 13.150, 1 को अपने को राउंडेड ऑफ करना है. आफ्टर 1 5 इज कम्स एंड आफ्टर 5 0 इज कम्स. बिफोर 5 1 is odd number and 1 is odd number, it is increased by 1. उसको किससे इंक्रीज कर देते हैं, 1 से इंक्रीज कर देते हैं. तो राउंडेड ऑफ 13.2. ये रूल्स थे आपके. एक क्वेश्चन, Question second, the substance of mass 5.74 gram and its volume is 1.2 सेंटीमीटर क्यूब. फुल स्टॉप. express the density by keeping significant figure. Okay, here answer, mass
इक्वल टू डिनोटेड बाई m 5.74 ग्राम, वॉल्यूम डिनोटेड बाई v 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, डिटरमाइन डेंसिटी डिनोटेड बाई d। डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मास कितना आ गया 5.74 डिवाइडेड बाई 1.2, डेंसिटी इक्वल टू 57.4 डिवाइडेड बाई 12 है। 12 है, 57.4 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 कितनी बार 4 पॉइंट आ गया, यहाँ 9 बच गए, 94 और 94 12 से डिवाइड हो गया 7 टाइम्स, फिर 10 हो गया, 10 के आगे 0 उतारोगे 100 हो गए, 100 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स हो गया, फिर 4 बच गए, 3 आ जाएगा। और मास की यूनिट क्या हो गई ग्राम, वॉल्यूम की यूनिट क्या हो गई सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर इस डेंसिटी वाले में कितने अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, सभी नॉन जीरो डिजिट हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और यहाँ पर मास में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3, और वॉल्यूम में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2। तो हमें डेंसिटी का जो आंसर हो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में देना है, और मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 है, तो इसको 7 को क्या करना है सिग्निफिकेंट राउंडेड ऑफ करना है। 7 के आफ्टर में जो 8 डिजिट है इज ग्रेटर देन 5, इट इज इंक्रीज्ड बाई 1, देयरफॉर डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी इक्वल टू 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लासेज